Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Lieutenant Colonel retired Muhammad Javed Khan from the Department of Education, Sarhad University of Science and Information Technology, Peshawar. Dear students, the course which we are going to talk about is Curriculum Development and Implementation. In this very course today, it is our 24th lecture, and in which we will be talking about the current trend in assessment, and we would be talking about portfolio assessment. Dear students, before we talk in detail about the portfolio assessment, let me share some general views related to the assessment and tests. Assessment is the process of identifying, gathering and interpreting information about students learning. कि assessment जो है वो क्या चीज़ है. assessment बुनियादी तौर पे हम information इकट्ठा करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को हम इंटरप्रेट करते हैं, जिसके नतीजे में हमें पता चलता है कि स्टूडेंट की किस हद तक लर्निंग हो रही है. लिहाजा इट इज़ पार्टिकुलरली a process in which we identify, gather and interpret that very information. The central purpose of assessment is to provide information on students' achievement and progress and set the direction for ongoing teaching and learning. जो असेसमेंट है उसके जो नताइज हैं जब हम असेसमेंट करते हैं वो दो किस्म के हैं. एक साइड पे तो वो स्टूडेंट के लर्निंग को चेक करता है और दूसरी तरफ पे इट एनेबल्स द टीचर टू टेक सर्टेन करेक्टिव मेजर्स कि ही इज़ गिवन अ चांस टू रिफॉर्म हिज टीचिंग एंड टीचिंग मैथडोलॉजी एंड हिज नॉलेज. तो ये एक बेहतर ज़रिया है जिसके से रिलेटेड हमें असेसमेंट के थ्रू पता चलता है कि एक टीचर किस अंदाज में पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, वो इफ़ेक्टिव टीचिंग है नहीं है, उससे स्टूडेंट की लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही. सो असेसमेंट इज़ बेसिकली related to the students' learning, and also it is an ongoing teaching learning process in which one reforms his or improves his teaching. What is the purpose for assessment of taking test? Basically, if we take test, we come to know that how the student do in schools is an important function of test. बुनियादी तौर पे हमें पता चल जाता है कि बच्चा स्कूल में कैसे परफॉर्म कर रहा है. Other than assessing how students have progress, it also tells the teachers how effective the instructions are. तो असेसमेंट का जो दूसरा एक पहलू है वो ये है कि वो टीचर को ये बता देता है कि उसकी इंस्ट्रक्शन कितनी इफ़ेक्टिव है. अगर इफ़ेक्टिव होती तो स्टूडेंट की लर्निंग होती. अगर स्टूडेंट के लर्निंग में कोई कमी कोताही रह गई है तो देट मस्ट बी पॉइंटेड टूवर्ड्स द इंस्ट्रक्शन. तो उस इंस्ट्रक्शन की एनालिसिस करनी चाहिए कि वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स को क्या मसाइल आ रहे हैं. Testing is not that simple. It continues throughout the year. और ये जो है हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कॉलेजेस के अंदर जब बच्चे दाखिला लेते हैं तो वहाँ पे भी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है. These tests also serve as a report card for assessing the educational standard of countries. It has been the basis of continuous education reforms intended to improve the achievement of students. Generally, tests, whether at the end or the beginning of the classes, are intended to diagnose strengths and weaknesses of the individual class members. जो टेस्ट लेने का तरीका होता है वो बुनियादी तौर पे बच्चों की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ को वो आइडेंटिफाई करने का एक ज़रिया होती है. Additionally, tests are used to track the progress of learning with that of the expected outcome. कि हमने जब करिकुलम के अंदर ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, किसी पर्टिकुलर कोर्स के ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, तो टेस्ट जो है वो हमें ये बताती है, ये हमें अंदाज़ा करके बताती है कि वो ऑब्जेक्टिव्स को, वो लर्निंग आउटकम्स को हम कितनी हद तक कामयाब हो गए हैं उसको हासिल करने में.
They aim to provide further motivation for students to do better and for making certain adjustment in certain programs. They can also help with the quality of teaching. तो जब हम टेस्ट लेते हैं और टेस्ट के नतीजे में हमें वो जो स्टैटिस्टिकल नताइज हमारे सामने आते हैं तो वो इस बात की निशानदेही करता है कि बच्चे की लर्निंग किस हद तक और कैसे हो रही है। अगर उसके अंदर कोई गैप है, कोई इशू आ रहा है, तो हम जो है वो डायरेक्टली टीचर की मेथडोलॉजी, उसकी टीचिंग मेथड, उसका रवैया, क्लास का माहौल, उन चीज़ों को फिर देखते हैं कि ये क्या वो कमी जो है किस वजह से रह गई है। सो ये जो टेस्ट का जो अमल है, जो असेसमेंट का अमल है, ये क्वालिटेटिव टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही मुवाफिक और इम्पॉर्टेंट एक अमल है। In our last class, we discussed about the criterion reference assessment. We will just quickly go through it, what it is. We will refresh your mind about this criterion reference assessment. It is a test and assessment which are designed to measure students' performance against a fixed set of predetermined criteria or learning standards. ये जो क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट होता है, इसके अंदर हमने पहले से कुछ रूब्रिक्स, स्टैंडर्ड्स वो डिटरमिन किए होते हैं, पहले से रखे होते हैं कि ये बच्चा जो है इतने से इतने नंबर लेगा तो ये एक ग्रेड में फॉल करेगा, अगर ये इससे कम ले लिए तो ही माइट फेल और थिंग्स लाइक दैट। तो वो जो क्राइटेरिया है या कि बच्चों को नॉलेज में कितनी हद तक चीज़ें आनी चाहिए, उनकी एटीट्यूड, बिहेवियर के अंदर, और उनकी जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक होनी चाहिए। सो पहले से हम एक क्राइटेरिया सेट करते हैं और उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट वंस वी असेस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, तो उसको हम क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट का नाम देते हैं। The second was the norm reference assessment. Norm reference assessment जो है उसके अंदर हम predetermined standards को नहीं रखते, बल्कि हम रिज़ल्ट को क्लास के अंदर बच्चों के साथ रिलेट करके उसके अंदर देखते हैं कि बच्चा कहाँ स्टैंड करता है। So norm reference refers to standardized tests that are designed to compare and rank test takers in relation to one another. Over here we have a comparison of both type of tests. It is flashed over here. You can see and read it for yourself. Now we come to our today's lesson, that is the portfolio assessment. Recent developments and demands in science and society have deeply affected education. अज़ीज़ तलबा, जो मौजूदा हालात हैं जिसके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की है और इल्म की जो नई जहतें हैं वो इंसान ने पाई हैं, इस वजह से तालीम के शोबे में, साइंस और रिसर्च के शोबे में जो नए नए इन्वेंशंस आई हैं, जो नई सोसाइटी जो है उससे चेंज होती जा रही है, तो उसके नतीजे में जो एजुकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा उससे मुतासिर हो रहा है। Theories such as constructivism and multiple intelligence and new social trends such as changing labor market, information age needs to create radical change in traditional approaches of learning, teaching and assessment, ये वो बुनियादी theories हैं जो कि नए तकाज़ों के हम आहंग हैं। ये वो theories हैं जो कि आजकल तालीम के अंदर इन हैं और हम इनको बरोकार ला रहे हैं। इन थीरीज़ में कंस्ट्रक्टिविज़म का मतलब ये है कि ये एक साइकोलॉजिकली इस बात का पता चलाया गया है न्यू नॉलेज के मुताबिक कि जो बच्चा सीखता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड उसके पास किसी न किसी अंदाज में उसके पास ओल्ड नॉलेज या प्रीवियस नॉलेज होता है। इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि बच्चे को जब हम कोई चीज़ पढ़ाएंगे तो उसकी बेस उसमें नहीं होगी। सो उससे गलत हो, ठीक हो, अच्छा हो, बुरा हो, जिस तरह भी है, बच्चे की एक किस्म की प्रीवियस नॉलेज एग्जिस्ट करती है और वो एग्जिस्ट जब करती है तो जब हम नई कोई बात सीखते हैं, हम नई कोई चीज़ लर्न करते हैं, तो जब हमारे जहन के अंदर नई बात जाती है तो वो पुराने या प्रीवियस आइडिया के साथ
वो उसको हम कोरिलेट करते हैं और उस कोरिलेशन के ज़रिए से हम ये असेसमेंट करते हैं, हमारा जहन एक प्रोसेस चलाता है और ऑटोमेटिकली वो देखता है कि व्हाट वाज माय प्रीवियस व्यू अबाउट दिस टॉपिक और दिस सब्जेक्ट and now what new I have learned, whether the new knowledge is acceptable or the old one is to be rejected. Now अभी ये प्रोसेस जो है वो हर जहन जो है अपने सोच के मुताबिक वो नई सोच को या ले लेता है, पुराने को डिस्कार्ड कर लेता है, या पुराने के अंदर कोई अमेंडमेंट करके नए को उधर एडजस्ट कर लेता है, या जो है वो नए को ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर लेता है. So it is the process of the accommodation and assimilation which takes place in our mind. और इस तरीके से इंसान जो है वो सीखने के अमल को आगे ले जाता है. So constructivism is about the concept that there is always a previous idea, an old knowledge which exists somehow related to the new knowledge, and what the mind does is that it correlates और उसके अंदर compare contrast करके वो या तो उसको मुकम्मल तौर पे एक्सेप्ट कर लेता है या पार्शियली एक्सेप्ट कर लेता है या उसको रिजेक्ट कर लेता है. सो दिस इज़ द प्रोसेस विच हैपन्स इन द माइंड, और इसके ऊपर इंसान की कोई इख्तियार नहीं होता, ये प्रोसेस ख़ुद ब खुद चलता है. इसके अलावा मल्टीपल इंटेलिजेंस की आजकल बात हो रही है कि हर जो इंडिविजुअल है उसके अंदर सिंगल इंटेलिजेंस नहीं होती बल्कि मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, और देयर आर 8 to 9 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, और उसके मुताबिक हमने बच्चों को ट्रीट करना है. एंड वी शुड सी कि बच्चे की ज़्यादा इंटेलिजेंस किस मद में है. इसके अलावा नए सोशल ट्रेंड्स आए हैं एजुकेशन से रिलेटेड कि एजुकेशन मार्केट ओरिएंटेड हो गई है. हमने जो कुछ पढ़ना है वो इस तरीके से पढ़ना है कि हम आगे देखते हैं कि उसकी यूटिलिटी क्या होगी, उसकी किस हद तक हमें जॉब मिलेगी. और इसके साथ जो इंफॉर्मेशन एज के जो ज़रूरियात हैं उन्होंने पुराने तरीक़ों को बिल्कुल जो है वो चेंज कर दिया है ऑल टुगेदर, पार्टिकुलरली इन एजुकेशन. द ओल्ड व्यूज़ रिलेटेड टू लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट वो बिल्कुल चेंज हो गई हैं. नई इंफॉर्मेशन एज, इंटरनेट एज, कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया, और ये जो बहुत सारे हमारे फिंगर टिप के ऊपर हमारे पास पूरी लाइब्रेरीज दुनिया की आ जाती है और एक टॉपिक से रिलेटेड मुकम्मल मालूमात हमारे पास आ जाती हैं. तो इसने हमारी ज़िंदगियों को ऑल टुगेदर चेंज किया हुआ है. Since learning approach is change, it affects assessment procedures and approaches. जिस तरह हमने पहले बात की कि लर्निंग के जो तरीक़ेकार हैं वो चेंज हो गए हैं. जब वो चेंज हो गए हैं तो असेसमेंट के जब हम उनको एवेल्यूएशन करेंगे तो वो असेसमेंट के जो टेस्ट लेने का जो अंदाज़ है वो भी मुख्तलिफ हो गया है. उसकी प्रोसीजर्स चेंज हो गई हैं, उसके अप्रोच जो है ऑल टुगेदर चेंज हो गए हैं. क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल असेसमेंट थी वो ट्रेडिशनल टीचिंग अप्रोच के साथ वो पैरेलल थी, वो मुवाफ़क़त रखती थी. अभी चूँकि नई टीचिंग मेथडोलॉजी एडॉप्ट हो गई है तो उसके हिसाब से जो असेसमेंट का तरीक़ेकार है वो ऑल टुगेदर चेंज हो गया है, और वो अब नई टीचिंग मेथडोलॉजी, नई टीचिंग अप्रोच, लर्निंग अप्रोच के मुताबिक होने चाहिए. For example, the main goals of earlier academic education enable students to know a certain domain. Since learning of basic knowledge was very important, behaviorist approach generally uses traditional instructional. पुराना जो तरीक़ेकार था उसके अंदर गोल यही था कि बच्चे जो है वो कॉग्निटिव डोमेन के अंदर वो नो करे, उनको चीज़ों का पता हो. लेकिन जो बेसिक जो ये बिहेवियरिस्ट अप्रोच था कि सिर्फ आपको पता हो, तो वो ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन के अंदर उसको यूज़ करते थे. नाउ वी कम टू दी ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शनल अप्रोच. इसके बारे में हमने पहले बात की है कि ट्रेडिशनल जो करिकुलम अप्रोच है वो क्या है, और उससे रिलेटेड जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शंस हैं कि टीचर किस तरीके से पढ़ाएगा और असेसमेंट लेगा.
So it is an abstract knowledge, and learning and teaching process is viewed as individual process, and learning is conceived as the accumulation of stimulus response association. जो ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी है टीचिंग का, वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज के ऊपर वो कंस्ट्रक्टेड करती है कि बच्चे जो है वो कंसेप्ट्स को लर्न करें और वो जहन में आइडियाज़ को ले लें और नई चीज़ों को लर्न करें। इसके अलावा जो टीचिंग प्रोसेस है ये एक हर बच्चे का इंडिविजुअल एक प्रोसेस है, और इसके मुताबिक बच्चे जो है वो स्टिमुलस रिस्पांस को उसके ज़रिए से वो सीखते हैं। सो इट वाज द बिहेवियरल अप्रोच टू लर्निंग। इसके अंदर ड्रिल्स और प्रैक्टिसेस और मेमोराइजेशन के ऊपर ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है, ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। द असेसमेंट प्रैक्टिस इज़ बेस्ड ऑन टेस्टिंग बेसिक नॉलेज। जो असेसमेंट है उसके नतीजे में सिर्फ के जो इंस्ट्रक्शन ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन के अंदर जो ज़ोर था वो नॉलेज के ऊपर था, लिहाजा बच्चों की सिर्फ नॉलेज को ही जज किया जाता है। द प्रूफ ऑफ लर्निंग इज सीन एज अ चेंजिंग द बिहेवियर इन इंक्रीजिंग द राइट आंसर इन टेस्ट एंड चेंजिंग बिटवीन प्री टेस्ट एंड द एंड टेस्ट इन दिस अप्रोच। कि जब हम पहले टेस्ट लेते हैं, उसके बाद पढ़ा लेते हैं, उसके आखिर में टेस्ट लेते हैं, तो हमें इस चीज़ का ट्रेडिशनल असेसमेंट के अंदर ये पता चलता है कि बच्चे के पास पहले नॉलेज नहीं था और बाद में उसने नॉलेज हासिल कर लिया, लिहाजा देयर वी एज्यूम दैट देयर इज़ नाउ अ चेंज इन हिज बिहेवियर एंड दिस इज़ व्हाट लर्निंग हैज़ टेकन प्लेस। So tests such as multiple choice, true, false, matching items of assessment are used in the traditional instructional approach. The traditional assessment approach mostly promotes students to memorize rules rather than conceptual understanding and focus on a small discrete component of the domain. इसमें बच्चों को concept के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जाती कि वो understand करें, बल्कि उनको चीज़ें सिर्फ और सिर्फ याद कराई जाती हैं। These tests provide less useful information about students' understanding and learning. तो ये जो टेस्ट हैं ये बच्चों के लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड कुछ कम ही इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, बल्कि उनकी मेमोराइजेशन को हम चेक कर सकते हैं और उनकी जो नॉलेज का नो हाव है वो कितना है वो हम उसमें पता कर सकते हैं। एक बच्चे ने एक सवाल याद किया है, उसने उसी तरह लिख लिया है, सवाल तो बिल्कुल जवाब ठीक है, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि बच्चे को ये चीज़ समझ भी आती है, उसकी लर्निंग हुई है, वो अंडरस्टैंड कर दिया है। सो ट्रेडिशनल असेसमेंट के अंदर इस बात का कोई जायज़ा नहीं लिया जाता था। The students can assess higher order cognitive skills such as problem solving, critical thinking and reasoning, not measure a student's ability to organize relevant information and assess what is easy to test memorization of memorized skills and procedures. तो ये जो ट्रेडिशनल असेसमेंट है ये किसी भी सूरत हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स को नहीं जांच सकते, जिसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका है, क्रिटिकल थिंकिंग है और रीजनिंग जो है वो एबिलिटी ही इसके अंदर नहीं है कि वो इन चीज़ों को जान सके। बल्कि ये जो ट्रेडिशनल असेसमेंट है ये सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट्स की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को चेक करती है और इसके अंदर के उसके जो वो स्किल्स हैं और जो प्रोसीजर है याद करने का, उसको रिप्रोड्यूस करने का, वो कैसा है। पोर्टफोलियो असेसमेंट nowadays students are expected to know skills such as cognitive skills including problem solving, critical thinking, analysis data and presenting them orally in written format and so on. तो आजकल के तालीम के अंदर जो असेसमेंट है तो उसमें जो बच्चों की कॉग्निटिव स्किल है उसमें जो बहुत सारी और पहलू शामिल हैं जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइजिंग डेटा एंड प्रेजेंटिंग दैट वेरी एनालाइज्ड डेटा both orally and in the written format is one of the important aspect of the present day assessment, जो कि हम पोर्टफोलियो असेसमेंट के अंदर इसको जानते हैं और देखते हैं। Alternative assessment approaches are needed in assessing both learning process and learning outcomes. ये जो पोर्टफोलियो असेसमेंट है, चूँकि ये असेसमेंट का एक नया तरीका है, हमने पिछले क्लासेस में भी दो नए तरीक़ों के ऊपर बात की थी, तो ये जो दो तीन तरीके हैं इनको हम अल्टरनेटिव असेसमेंट कहते हैं। ये जो अल्टरनेटिव असेसमेंट अप्रोच है, इट इज़ द अपोजिट ऑफ द ट्रेडिशनल असेसमेंट अप्रोच।
Various organizations published the standards about assessment and curriculum. These standards are multiple and complex assessment tools including written, oral and demonstrative formats and recommend that assessment should contribute to students' learning. तो ये जो मुख्तलिफ असेसमेंट के स्टैंडर्ड्स हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। वो मल्टीपल और कम्प्लेक्स असेसमेंट टूल्स को जज करते हैं कि हम किस तरह जो है वो बच्चों की ये कि वो बच्चे सिंपल से कम्प्लेक्स और मल्टीपल की तरफ कैसे जा रहे हैं। उनकी ओरल, रिटन और जो प्रैक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन है उसके ऊपर भी जोर दिया जाता है। This implies that assessment techniques should focus on assessing what students know as well as what they do not know. तो पोर्टफोलियो असेसमेंट के अंदर जो असेसमेंट के तरीक़ेकार हैं वो उसमें ये देखा जाता है कि बच्चों को कितनी हद तक चीज़ों का पता है और कितनी हद तक जो है वो पता नहीं है। सो ये दोनों एस्पेक्ट्स को जाना जाता है। These recommendations can be achieved through alternative assessments, measuring students' performance and developments in learning process. One of the alternative methods in education used in the assessment of the students' individual or group performance is portfolio. जो नए वक्त के तकाज़ों के मुताबिक जो असेसमेंट है जिसको हम अल्टरनेटिव मेथड का नाम देते हैं उसके अंदर जो पोर्टफोलियो असेसमेंट है ये इट इज़ वन ऑफ द असेसमेंट जिसको हम स्टूडेंट्स का कराते हैं। Necessity of using portfolio is emphasized by many researches. इसकी अहमियत जो है वो तालीम के अंदर बहुत सारे रिसर्चेस के बाद इस बात को अंदाज़ा लगाया गया है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। Portfolios gives a reliable and dynamic data about students for teachers, parents and also students themselves. जो पोर्टफोलियो असेसमेंट के थ्रू हमारे पास जो डेटा आता है तो हम वो बहुत ही कारआमद होता है न सिर्फ टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टीचर जो स्टूडेंट है वो पोर्टफोलियो असेसमेंट के अंदर जो है वो ख़ुद अपने आप को भी असेस कर सकता है। Using this assessment method in primary schools provides getting clear information about students and fulfilling their weaknesses and help teachers planning teaching progress. Portfolio is a purposeful collection of student work that exhibits to the student or others her or his efforts are achieving in one or more areas. पोर्टफोलियो जो है ये एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसके अंदर बच्चों की जितने भी उनको काम दिए जाते हैं उनको टीचर चेक करने के बाद उनको एक फ़ोल्डर के अंदर वो बाकायदा रखते हैं और उसको पाइल अप करते हैं और उनको बाद में जो है वो देखा जाता है कि बच्चे ख़ुद भी देख सकते हैं, टीचर भी उनको देख सकती हैं और वो उनकी जो ग्रेजुअल प्रोग्रेस है उनको वो नोट कर सकते हैं कि बच्चे को एक मौके पे बताया गया, उनको करेक्ट किया गया कि आप इस तरह ना किया करें, इसको कोई चीज़ आप लिखते हैं कंसेप्ट या आइडिया को तो उसको आप इस अंदाज में पेश करें। उसके बाद सब्सिक्वेंटली देखा जाता है कि क्या बच्चे ने उस काम को उस तरह करना शुरू किया, डिड ही ब्रिंग अबाउट द चेंज और नॉट। तो ये पोर्टफोलियो असेसमेंट ही हमें बेहतर तरीके से बताता है कि आया बच्चे जो हैं वो करेक्शन के बाद वो दे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन देमसेल्व्स और नॉट। क्या उनकी लर्निंग हो रही है, अगर हो रही हो या नहीं हो रही तो वो दोनों सूरतों में वो एग्जिबिट हो जाएगी पोर्टफोलियो फोल्डर के अंदर। Portfolio is a purposeful collection of students' work that exhibits the students' efforts, progress and achievement in one or more areas. The collection must include student participation in selecting content, the criteria for selection, the criteria for judging merit, and evidence of student self-reflection. It is a record of child's process of learning, जिसमें हम देखते हैं कि what the child has learned and how learning took place। जो ये रिकॉर्ड है हमारे पास बच्चे की लर्निंग का तो उसके अंदर हम देखते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा और उसकी लर्निंग किस अंदाज में हुई। दूसरी बात ये है कि how he thinks
how he questions, how he analyzes, how he synthesizes, how he produces and creates. तो ये हम देखते हैं कि उसकी सोच और फ़िक्र का जो अंदाज़ है वो किस तरफ जा रहा है। इसके अलावा इस प्रोसेस के अंदर ये भी देखा जाता है कि हाउ ही इंटरेक्ट्स इंटेलेक्चुअली, इमोशनली एंड सोशली विद अदर, कि बच्चा जो है वो अपनी जहनी इस्तेमाल, अपने जज्बाती तौर पे और सोशली जो है वो कैसे इंटरेक्ट करता है। सो ये तीन जो है पोर्टफोलियो असेसमेंट के ये बुनियादी जो हैं वो एस्पेक्ट्स हैं। पोर्टफोलियो इज़ अ लोड ऑफ कलेक्टेड एविडेंस विद अ पर्पस। पोर्टफोलियो जो है, जिस तरह के मैंने पहले बात की कि हमारे पास जितनी एविडेंसेस होते हैं उनको हम फोल्डर के अंदर वो रखते जाते हैं, डेट वाइज रखते जाते हैं और हम उनको एक लोड दे देते हैं, उनको कलेक्ट कर लेते हैं। तो और उस पे हम एक ख़ास मकसद के लिए होता है जिसको हम कुछ अरसे के बाद रिविज़िट करके चेक करते हैं। Evidence is documentations that can be used one person or group of person to infer another person knowledge, skill or disposition। तो ये जो एविडेंस होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स हमने इकट्ठे कर लिए हैं, तो ये इस मकसद के लिए है कि एक बंदा या एक ग्रुप जो है दूसरों के या अपने जो है नॉलेज, स्किल और डिस्पोजिशन को इसमें चेक करें। A portfolio assessment is the collective term for the assessment of a student's work। So जब हम स्टूडेंट के काम को कलेक्ट कर लेते हैं और उसको बाकायदा एक डेट वाइज उसको रखते हैं, तो ये पोर्टफोलियो असेसमेंट का एक तरीका है। दिस इज़ द असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एफर्ट्स, प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट्स। It can be the examination of the student's selective works and documents that contributes to the student's achievement of the academic goals. Here are some portfolio assessment templates that can check out or gather more information. Portfolio is a purposeful collection of student work that exhibits students' efforts and achievement. The collection must include students participating in selecting contacts, criteria for selection, the criteria for judging merit, and evidence of students' self-reflection. Portfolio assessment is a sort of assessment that learners do together with their teachers and is an alternative to the classical classroom tests. The portfolio contains samples of the learner's work and shows growth over time. तो पोर्टफोलियो असेसमेंट के अंदर every document is being placed. Earlier it has been marked by the teacher and they have given their notes. Even if there are no assessment which has taken place and if those documents have been piled up, so even then we can, if we go through them, if we look at them, so we can come to know कि बच्चा जो है वो किस अंदाज में सीख रहा है और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है। And even if the teacher has or the peers have checked the portfolio document, तो उससे भी हमें पता चलता है कि whether the student has incorporated those very mistakes which were highlighted, those very things which were told to him. So it tells us the gradual progress कि वो कितना इंटरेस्ट लेता है तालीम के अंदर, वो लर्निंग के अंदर, और वो अपने काम को किस तरीके से बढ़ा रहा है। An important keyword is reflection. पोर्टफोलियो असेसमेंट के अंदर जो हम एक लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करते हैं वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि हम पिछले काम के ऊपर दोबारा उसको खोल के रिफ्लेक्ट करते हैं, और बाय रिफ्लेक्शन ऑन देयर ओन वर्क लर्निंग बिगिंस टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ देयर ओन वर्क। जब इवन स्टूडेंट खुद अपने कंपाइल्ड डेटा को देखता है तो उसको खुद उसकी रिफ्लेक्शन होती है, उसको अपनी गलतियां सामने आती हैं
उसको अपनी स्ट्रेंथ सामने आती हैं और वो इस तरीके से सेल्फ असेसमेंट के अमल से गुज़रता है। और यही सेल्फ असेसमेंट का जो अमल है ये रिफ्लेक्शन का अमल है। और रिफ्लेक्शन अमल जो है वो मॉडर्न असेसमेंट के तरीक़ों के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग, और क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वी सी दैट इट इज़ दी मॉडर्न अप्रोच टू लर्निंग, कि हम लर्निंग किस तरीके से करते हैं। लिहाजा जब इनकी कड़ियाँ हम देखते हैं तो ये पोर्टफोलियो असेसमेंट की ये ऑटोमेटिकली मॉडर्न मेथड ऑफ असेसमेंट के साथ जुड़ी हुई हैं। जब हम या स्टूडेंट जो हैं, टीचर या स्टूडेंट पोर्टफोलियो असेसमेंट को असेस करता है तो इससे हमें वीकनेसेस बच्चे की सामने आती हैं। इन पोर्टफोलियो असेसमेंट क्वालिटी काउंट्स मोर देन क्वांटिटी। अनदर की वर्ड इज़ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो हम उसमें देखते हैं कि बच्चे के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आया पूरे हो रहे हैं, बच्चा लर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। Each portfolio entry needs to be assessed with reference to its specific learning objectives or goals. Different schools may create different forms of portfolios for the students. Some schools create portfolios that are representative, a sample of the learner's work. Schools use portfolios as an assessment tool that can be an alternative to classical classroom tests and standardized teacher evaluation. The role of reflection in portfolio assessment. In portfolio assessment, the learners reflect on their own work. The reflection should say something about why the learners have made the choices they have made in the portfolio and describe the method used to arrive at the final result. If two learners submit the same work for assessment, the individual reflection may make the difference. Even if a learner has failed with the content presented in the assessment portfolio to a certain degree, he or she might be rewarded for mature reflections on the work. Portfolio is a collection of artifacts with a coherent structure and a guide to that structure, such as a contents page. जब हम पोर्टफोलियोज़ को इकट्ठा करते हैं या जो आर्टिफैक्ट्स होती हैं जो कि एविडेंस फॉर्म में होती हैं, तो उनको बाकायदा हम एक ऑर्डर के तहत ऑर्गेनाइज तरीके से उनको प्लेस करते हैं और उसमें जो पहली चीज़ें आई होती हैं वो नीचे की तरफ होती हैं और जो आ रही होती हैं वो ऊपर होती हैं। तो इन आर्टिफैक्ट्स को हम एक बाकायदा स्ट्रक्चर देते हैं और बाकायदा उसके बाहर एक कंटेंट पेज जो है वो बनाया जाता है। As a learning and assessment tool, a portfolio will normally comprise more than just the artifacts and will include a reflective dimension. The learning tool portfolio is where a learner reflects on what they have learned, encapsulates key aspects of their learning based on their success and failures as evidenced by the artifacts, proposes their future plans for the learning. A portfolio can be seen as both a product and a process. As a product, it holds the work records and documents a learner has made during a course of program and represents an edited collection of their learning achievements. As a process-oriented tool, it enables learners to monitor their own learning systematically, reflect on their learning performance, present a coherent account of their achievement, and obtain feedback on their learning. जो पोर्टफोलियो असेसमेंट के अंदर ये जो इसको हम पोर्टफोलियो असेसमेंट को दो तरीक़ों से देखते हैं। इसको एज अ प्रोडक्ट के तौर पे भी हम देखते हैं और इसको एज अ प्रोसेस के अंदर भी देखते हैं। एज अ प्रोडक्ट जो है इट कंटेन्स द रिकॉर्ड ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट द लर्नर हैज़ प्रोड्यूस्ड, वेयर एज अ प्रोसेस जब हम इसको देखते हैं तो इसमें हम लर्निंग को सिस्टमेटिक अंदाज में देखते हैं, हम उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं और स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो परफॉर्मेंस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम उसको देखते हैं और हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या रब्त आ रहा है, व्हाट इज़ द कोहेरेंस विच इज़ बीइंग देयर। लर्निंग पोर्टफोलियो
जो लर्निंग की स्टूडेंट की हम देखते हैं तो ये उसमें देखा जाता है कि बच्चे ने अगर कोई गलती की है तो उस गलतियों का फिर अजाला क्या है, वो अपने गलतियां कैसे करेक्ट करते हैं और वो लर्निंग को आगे फ्यूचर प्लान्स में कैसे शामिल करेगा। तो ये जो एक बहुत क्वेश्चन मार्क होता है इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट के टीचर के सामने भी कि वो कौन से तरीके अपनाएंगे कि बच्चे को लर्निंग से रिलेटेड वो जो एक मुवाफिक हालात हैं उनको बताया जाए और वो अपने लिए एक ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आगे रखे बेस्ड ऑन दी पोर्टफोलियो असेसमेंट टूल्स कि वो अपने आप को फर्दर इम्प्रूव करें। सो वी कैन वेरी सेफली से दैट पोर्टफोलियो असेसमेंट is something which is cyclical. It gives us an opportunity and a chance to revisit what we have produced earlier, and it is evidence through the form of documents which are placed there. और वो concrete जो हमारे पास evidence होता है, once we look back over a period of time what we have been writing and what we have been doing and how we've been giving our ideas, whether we have been able to apply and materialize what we wanted to know. तो ये सारी चीज़ें जो है उसको जब हम पीछे देखते हैं, रिफ्लेक्टिवली देखते हैं, तो हमारी गलतियां हमें नज़र आती हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स हमें नज़र आ जाती हैं और हमें टाइमली पता चल जाता है कि आगे जो हम लर्निंग करेंगे उसको हम कैसे इम्प्रूव करने की गुंजाइश है, हम कैसे इम्प्रूव करेंगे और उसके अंदर नए तकाज़ों के मुताबिक, नए सोच के मुताबिक अपने वो जो इश्यूज़ हैं उनको कैसे करेक्ट करेंगे। Although portfolios are used in the assessment of students' performance nowadays, they are used as a method by architects, painters, photographers and artists in showing their work. पोर्टफोलियो जो है ये एक ऐसे असेसमेंट का तरीक़ेकार है जो कि क्लासरूम में स्टूडेंट्स की कराई जाती है और इससे बच्चे की परफॉर्मेंस का पता चलता है। तो न सिर्फ बच्चे आजकल स्कूलों के अंदर बल्कि मुख्तलिफ़ जो जगह हैं, जिस तरह आर्किटेक्ट होते हैं, पेंटर्स होते हैं, फ़ोटोग्राफ़र्स और आर्टिस्ट होते हैं, वो अपने काम को एक बाकायदा सीरियल वाइज ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं और अ पीरियड ऑफ टाइम दे रिविजिट दोज वेरी थिंग्स, they see how it looks, what mistakes we have done, what are our strengths and weaknesses there, and it also gives us an indication that have we been improving or we are going backwards, कि हमारे अंदर जो तरक्की आ रही है, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम लर्न कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं या हम अपने काम में पीछे जा रहे हैं। So portfolio assessment gives us a very clear idea कि where we stand, और उसके बाद हमें ये एक चांस देता है कि वी सी के हम अपने लिए आगे जाने के लिए क्या असूल कार फरमा करते हैं। However, as portfolio has been used for different purposes, it may be different from than that of artist. तो एजुकेशन का जो पोर्टफोलियो है वो ऑटोमेटिकली दैट इज़ somehow different from the artist. It is not possible to use only one definition per portfolio. Definition of portfolio may change according to users' purpose and way of usage. Many researchers define portfolio in order to explain its features. The greatest value of portfolio is that in building them, students become active participants in the learning process and its assessment. पोर्टफोलियो असेसमेंट का जो सबसे बेहतर और अहम एक जुज़ है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ख़ुद जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन जाते हैं अपने आप को असेस करने का। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बात है जो कि हमें जहन नशीन रखनी चाहिए। पोर्टफोलियो असेसमेंट इज़ वन ऑफ सेवरल ऑथेंटिक एंड नॉन ट्रेडिशनल assessment techniques in education. The use of portfolio assessment became popular in early to late 1980s in response to the growing emphasis on more reasonable and authentic means of assessing students' growth and development in school. Now, we come to a few principles of portfolio. First of all, the first portfolio principle is a portfolio is a form of
assessment that students do together with their teacher. कि जो पोर्टफोलियो असेसमेंट है उसका एक बुनियादी फ़ीचर यही है और ये एक कैरेक्टरिस्टिक भी है पोर्टफोलियो असेसमेंट का कि ये बच्चा जो है या स्टूडेंट जो है वो टीचर के साथ मिलके अपने आप को असेस कर रहा होता है. द टीचर इज़ टेलिंग, गाइडिंग, करेक्टिंग एंड आगे ले जाने को उसको वो लर्न करवाने की कोशिश करता है. और स्टूडेंट जो है वो विलफुली वो अपने आप को भी असेस कर रहा होता है, वो टीचर की बात को भी समझ रहा होता है. एंड इन दिस वे इट इज़ अ बेटर मेथड ऑफ असेसिंग अ स्टूडेंट in which the student works together with the teacher. The teacher guides the students in the planning, execution and evaluation of contents of the portfolio. Together they formulate the overall objectives for constructing the portfolio. As such, students and teachers interact in every step of the process in developing a portfolio. Secondly, a portfolio presents a selection of what the students believe are best included from among the possible collection of things related to the concept being studies. कि बच्चे को ये मौका दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि चलें आप इसमें से जो आपके ख्याल में बेस्ट चीज़ें हैं वो निकाल लें. It is the teacher's responsibility to assist the student in actually choosing from among possible set of choices to be included in the portfolio. However, the final selection should be done by the students themselves, since the portfolio represents what the students believe are important considerations. A portfolio provides samples of the students' work which show growth over time. तो ये पोर्टफोलियो जो है इसके अंदर जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होता है वो हमें ग्रोथ का अमल बताता है कि बच्चा जो है वो किस तरीके से बढ़ रहा है. By reflecting on their own learning or self-assessment, students begin to identify the strengths and weaknesses in their work. These weaknesses then become improvement goals. The criteria for selecting and assessing the portfolio contents must be clear to the teacher and the students. ये बात की ज़रूरत पड़ती है कि स्टूडेंट और टीचर को दोनों को पता होना चाहिए कि वो क्या सिलेक्ट कर रहे हैं और क्या असेस कर रहे हैं. अगर आपके पास वो क्राइटेरिया मौजूद है कि आप इस प्रोसेस को कैसे चला रहे हैं, क्या चीज़ें एसेंशियल हैं, क्या अनएसेंशियल हैं, तो वो जो असेसमेंट है वो बेहतर तरीके से होगी. Now, there are certain purposes of portfolio assessment. कि portfolio assessment के मकसद क्या है, हम क्यों कराना चाहते हैं. Number one, why should we resort to portfolio assessment method? Portfolio assessment has several purposes rationale for its use, and the first one is that portfolio assessment matches assessment of teaching. कि पोर्टफोलियो असेसमेंट हमें ये एक चांस देता है जिसके अंदर टीचिंग और लर्निंग को मैच किया जाता है. असेसमेंट के ज़रिए हम टीचिंग को असेस कर लेते हैं. The final outputs to be assessed are products of the classroom discussion and classroom work and are not simple diversion from the class activities. Secondly, जो पोर्टफोलियो असेसमेंट है इसके क्लियर गोल्स होते हैं. In cognitive testing, the objectives are set at the beginning, but the actual items may or may not reflect achievement of such objectives. In portfolio assessment, however, the students control the items to be included and therefore are assured that the goals are achieved. क्योंकि स्टूडेंट्स पे ये काम सौंपा जाता है कि वो ख़ुद अपने लिए एक असेसमेंट पोर्टफोलियो का फोल्डर बनाएं, तो वो उसने क्या चीज़ें शामिल की हैं क्या नहीं की ये भी उस पर डिपेंड करता है. Portfolio assessment gives a profile of a learner abilities in terms of depth, breadth and width. ये जो पोर्टफोलियो असेसमेंट है ये हमें जो लर्नर का एक प्रोफाइल देता है जिसके अंदर हम उसके नॉलेज, एप्लीकेशन और अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ, उसकी ब्रेड्थ और उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम बेहतर तरीके से जज कर सकते हैं.
Portfolio assessment is a tool for assessing a variety of skills not normally testable in a single setting for traditional testing. जो portfolio assessment है इसके अंदर जो embedded assessment होती है कि we check several things, ये हमें it gives us an opportunity कि हम जो है बहुत सारी चीज़ों को उसके अंदर बहुत सारे skills को हम check करें कि बच्चा जो है वो कहाँ stand करता है. Portfolio assessment develops awareness of students' own learning. Portfolio assessment caters to individuals in a heterogeneous class. जो portfolio assessment है ये class जो जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चे होते हैं जो कि learning के जो style होते हैं वो different होते हैं, उनका background different होता है. जब class हर लिहाज से heterogeneous होता है तो ये portfolio जो है ये बच्चों को बेहतर तरीके से जांचने का एक तरीका है. Portfolio assessment develops social skills. ये जो तरीका है इससे बच्चे की social skill improve होती हैं. Sometimes they are assessed and work done in groups or in pairs so that they necessarily have to interact, band, collaborate to complete with the task. बाज़ काम जो है वो बच्चों को ग्रुप की शक्ल में मिलते हैं, पेयर की शक्ल में मिलते हैं. जब वो उनको कर देते हैं और जब उनको असेस कर लेते हैं तो उनको एक मौका दिया जाता है कि वो आपस में बातचीत करें और आपस में इंटरेक्ट करें. Portfolio assessment develops independent and active learners. Students must select and justify portfolio choice, monitor progress, and set learning goals. Traditional testing cannot achieve the educational objectives. Portfolio assessment can improve motivation for learning and thus achievement. कि ये जो पोर्टफोलियो असेसमेंट है इसके अंदर बच्चे जो है वो मोटिवेटेड होते हैं और वो लर्निंग की तरफ जो है वो राग़िब होते हैं और वो बेहतर अचीव करते हैं. पोर्टफोलियो असेसमेंट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टीचर डायलॉग. ये पोर्टफोलियो असेसमेंट एक चांस देता है, एक मौका देता है बच्चों को और टीचर को कि वो आपस में बैठ के गुफ्तशनीद करें, बातचीत करें. There are now certain essential elements of the portfolio. The portfolio tells us what the student portfolio shows about the progress as a learner. इसके अलावा हम एक कवर लेटर भी इसके ऊपर चढ़ाते हैं कि वो उसको हम देख लेते हैं कि इस बच्चे ने किस हद तक वो चीज़ें इम्प्रूव की हैं. इसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है, इसके अंदर एंट्रीज़ होती हैं बोथ कोर एंड ऑप्शनल. The optional items allow the folder to represent the uniqueness of each student. और core elements जो हैं वो चीज़ों बच्चों की वो बुनियादी जो strengths है वो बताती हैं. A student can choose to include best pieces of work but also a piece of work which gave trouble or one that was less successful and give reasons why. इसके अलावा dates on all entries are being given. और जो ड्राफ्ट होता है रिटन प्रोडक्ट्स का इसको रिवाइज्ड फॉर्म में भी उसके साथ आप अटैच कर सकते हैं. और लास्टली जो है रिफ्लेक्शन कैन अपीयर एट डिफरेंट स्टेजेस इन द लर्निंग प्रोसेस एंड एट द लोअर लेवल्स कैन बी रिटन इन द मदर टंग और बाय स्टूडेंट्स हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन इंग्लिश. What are the pros and cons of the portfolio assessment? A portfolio, the pros we will be discussing. The positive aspect of portfolio assessment demonstrates that learning over the course of time rather than what a student knows a particular day. कि बच्चे जो है over a period of time क्या सीख रहे हैं, ना कि एक दिन के अंदर उन्होंने क्या सीखा. So ये portfolio assessment हमें over a period of time जो है वो बताता है कि बच्चे किस तरह सीख रहे हैं. A portfolio assessment provides an opportunity for a student to reflect on their learning, to self-assess, and to formulate a deeper understanding of the concepts they are learning beyond a simple surface explanation. इसके अलावा a portfolio assessment requires a great level of individual interaction between the student and the teacher, wherein they are always collaborating about the requirements and components going on into the portfolio.
Now, some of the demerits are developing and assessing a portfolio is time consuming for the teacher and even for the student. It takes a lot of effort from both the teacher and the student and is a demanding struggle in which you can quickly fall behind. तो इसको हर वक्त जो है वो सही अंदाज में रखना, उसको हर वक्त अपडेट करना अक्सर रह जाता है. Portfolio assessment are very subjective in nature. Even if the teacher utilizes a rubric, the individual nature of the portfolio makes it difficult to remain objective and stick to the rubric. Two students working on the same learning standards may have two totally different approaches, thus learning may not be the same. Dear students, after discussing in detail what portfolio assessment is, what are its various features, its characteristics and principles, and what are the merits and demerits of portfolio assessment in the modern technique of assessment, we come to the end of our today's class. Thank you very much.